Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School. Jai Swaminarayan. Today I start with Standard 7th, Book Geography, continuation of Chapter 8. Okay, Geography Chapter 8, page number 60. That is, I was explaining about the, in my previous class मैंने explain किया था about the Ganga and the Brahmaputra basin. That is, we go to page number 60, second paragraph. Look at the map of India. That is given. पीछे आप देखो दिया है figure 8.8. Find out the states in which the Ganga Brahmaputra basin lies. The basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. Okay, obvious है. पहाड़ में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन कम है, प्लेन में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है. ओके, ईस्ट में जहाँ पे जंगल बहुत घने घने हैं वहाँ पे भी लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट. द माउंटेन एरियाज with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga-Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. Okay, plain area में human habitation बहुत ही easy है. The density of the population of the plains is very high. प्लेन एरिया में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है. काम, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज मोर. इसलिए यहाँ पे ज़्यादा habitation है, human habitation. The soil is fertile because agriculture is the main occupation of the people where the flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. The main crop is paddy. फिगर 8.9 यू कैन सी दिस पैडी कल्टीवेशन. देखो कितने पानी के अंदर है ये कल्टीवेशन, कितना पानी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज टी गार्डन इन असम. The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. ये पैडी वही ग्रो होता है जहाँ पे पानी बारिश बहुत हुई हो, क्योंकि इसे बहुत पानी चाहिए. Wheat, maize, sorghum, grams and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. Banana plantations are seen in some areas of the plain. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Okay, you can see the tea plantation in Assam. Silk is produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. जहाँ पे silkworms ज़्यादा है बिहार और असम में, वहाँ सिल्क बहुत ज़्यादा है. In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. Okay, जहाँ slopes थोड़ी gentle है, बहुत steep नहीं, थोड़े से slope है, तो वहाँ पे ज़्यादातर crops are grown on terraces. उन्हें टेरेसेस कहते हैं. द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स. जैसी लैंड होगी, प्लेन लैंड, टेरेन लैंड, टेरेस लैंड, स्लोप लैंड, उसके हिसाब से वेजिटेशन होता है. और जहाँ लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से वेजिटेशन ग्रो करते हैं. इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज में teak, sal and people are grown. This thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. So देखो different एक ही इंडिया में रहकर there is a different climate, then environment, उसके हिसाब से fruits, vegetables are grown. There is a variety of wildlife
in the basin. उसके हिसाब से पहले ग्लॉसरी, उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स भी डिफरेंट है एक ही कंट्री में रह के. एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकीज आर कॉमन, और मोस्टली ये एनिमल्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब में कॉमन है. टाइगर्स, डियर, मंकीज. द वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर. क्रोकोडाइल्स देखा आपको, वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस यू कैन सी. देन सी द क्रोकोडाइल्स, देखो बंगाल टाइगर, crocodiles and alligators are found. Aquatic life abounds in the, बहुत ज़्यादा है, in the freshwater river, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular variety of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is a staple diet of the people living in such areas. बहुत common fish है, बहुत सस्ती है. On the right hand side, see, terraces are built on the steep slopes, see, to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that the water does not run off rapidly. क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी, तो देखो ना, थोड़ा सा ऐसे उन्होंने कर दिया है, पानी तो जमा रहे ना. अगर पानी सारा ही नीचे गिरता जाएगा तो फिर इनको पानी कैसे मिलेगा? थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए ना, इसलिए that is terrace farming. Then see this little down, you can see in the fresh waters of river Ganga and the river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu, also called blind dolphin, is found. The presence of susu is an indication of the health of the river. बोलते हैं कि जिस जगह में डॉल्फिन्स होते हैं ना, मतलब वो पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉल्फिन्स हमेशा साफ सुथरे पानी में रहते हैं. गंदे पानी में डॉल्फिन्स कभी नहीं रहती है. इसलिए जो पानी एकदम साफ है वहाँ डॉल्फिन ब्रीड करती है. तो इससे पता चलता है कि द हेल्थ ऑफ द रिवर. द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर. कि अगर कोई नदी है कितनी गंदी होती है, उसमें ऑयल अंदर निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सब, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स ये सब मर जाते हैं. हम थोड़ी गिनने जा रहे हैं, पता नहीं कितने मरे होंगे अंदर, कितने मरते होंगे. Okay, then we go to lake, a source of livelihood. Lake, fresh water lakes. लेक तो कैसे, लेक तो अपने आप बन जाता है ना, बिकॉज ऊपर पहाड़ों में से छोटे छोटे वो जो ऊपर है शिवालिक एंड मानसरोवर, वहाँ से जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते तो थोड़े झरने की जैसे पानी नीचे आता रहता है, और जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती वहाँ पे वो लेक बन जाता है. जैसे कश्मीर में डाल लेक वगैरह ये ऐसे ही बने, मेल्टिंग ऑफ दी दैट इज ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसी से ये सब लेक्स बने हैं. Binod is a fisherman living in the Matwali Mon village of Bihar. देखो कितना क्लीन लेक है. Binod is a fisherman living in the Matwali Mon village of Bihar. He is a happy man today. With the efforts of the fellow fishermen Ravindra Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mon or the Oxbow lake to cultivate different varieties of fish. The local weed, that is Valinaria hydrilla, that grows in the lake is a food of the fish. तो ये जहाँ पे ये लोकल वीड होंगे ना, वहाँ फिश बहुत होगी, क्योंकि फिश का ये फेवरेट फूड है. The lake around the lake is the land around the lake is fertile. He sows crops such as paddy, maize and pulses. The buffalo is used to plough the land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat, and enough to sell in the market. They have even begun supply to the neighboring town. इतनी है कि वो अपनी मार्केट
को तो देते ही देते हैं, अपने नेबरिंग टाउन्स को भी वो बेचने जाते हैं. द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर और नेचुरल एवरीथिंग. As long as the pollutants from nearby towns do not find the way into the lake waters, a fish cultivation will not face any threat. मतलब कि दूर दूर तक कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, तो वो लेक अच्छा ही होगा. और जो नीट एंड टाइडी है, हेल्दी रिवर है, वहाँ पे बहुत सारे फिश ब्रीड करेंगे. और जहाँ फिश ब्रीड होगी मतलब कि लोगों को आसानी हो जाएगी, एक उनका क्या बोलते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बन जाएगा. और वो यही कर रहे हैं, कितना पैसा वो कमा रहे हैं. सो जब तक आसपास कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं होता है या वेस्ट किया हुआ है कुछ सामान इस रिवर में नहीं जाता है, तब तक सोचो ये लेक कितनी नीट एंड क्लीन और प्योर है. और देखो अ पॉल्यूटेड लेक. To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. Okay, that is to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. Okay, so that was a story of बिहार के एक छोटी सी कम्युनिटी का. They were so happy because उनकी लेक एकदम neat and clean थी. Then we go to next, you can see the Varanasi on the along the river Ganga. ये सब कितनी polluted है. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जिस जिस स्टेट से बहती है ना, सब बड़े बड़े शहर हैं. और बड़े बड़े शहर यानी पॉपुलेटेड, और वहाँ तो नदियों का सत्यानाश. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, Kolkata, all with the population, सब populated countries है. More than 10 lakhs are located along the river Ganga. तो सोचो गंगा का क्या हाल हुआ होगा. मोनिका मैम लगा. The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers. क्योंकि ये बड़े बड़े अब शहर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि बहुत इंडस्ट्रियल भी बहुत होगा वहाँ पे. ओके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है. दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर. देखो आप देख सकते हो कितना पॉल्यूटेड है ये वाराणसी का गंगा नदी. इवन हरिद्वार की भी गंगा नदी. ओके, this leads to the pollution of the rivers. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. If the plain areas, the roadways and the railway transport the people from one place to another, the waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं तो यहाँ पे वाटरवेज कॉमन है. एक गांव से दूसरे गांव, शहर से मतलब टाउन से दूसरे टाउन भी यहाँ पे ये चलती है. वाटरवेज भी है यहाँ पे. रेलवेज और रोडवेज तो है. वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. Kolkata, river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. देखो देख सकते हो टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
to conserve the river Ganga, Namami Ganga program has been initiated. प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, has been initiated to make people aware to keep this rivers neat and clean. Then tourism is another important activity of the basin. ऐसी जगहों में तो टूरिज्म भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे अजंता एलोरा केव्स है, देन और भी वाराणसी में इतने सारे टेम्पल्स है, तो टूरिस्ट प्लेस है ये बहुत बड़ी. कोलकाता भी टूरिस्ट प्लेस है, देन इवन पटना भी है, वाराणसी, लखनऊ सब टूरिस्ट प्लेस है. पीपल कम. ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. अलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा यमुना, उनका मिलन संगम. बुद्धिस्ट स्टूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा. आसम विद काजीरंगा. मुझे हाँ जेम्स क्लासेस एंड मानस विद हाँ जेमोन सर. हाँ मैं मोनिका मैम की ओके. अरे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है तो सारे नंबर्स उसमें है, तो इसलिए मेरे उनकी डॉटर मतलब मेरे फोन से. हाँ ऐसा है. हाँ ओके ओके ठीक है, थैंक यू. टेक्स्ट कर रहे हैं. Lucknow with its Imambara, Assam with the Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. Okay. See, that is tourism is another important activity of this basin. Taj Mahal on the banks of river, ये सब देखने वाली चीजें यमुना के किनारे है. अलाहाबाद कहाँ पे है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम है. बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा. आसम विद काजीरंगा एंड मानस, बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एंड अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट. देखो देना. हेलो. ओके. सो मतलब wherever you go, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एवरीथिंग मतलब आप एंजॉय करोगे क्योंकि हमारी इंडिया डाइवर्सिटी कंट्री है. डाइवर्सिटी पीपल, फूड, क्लॉथ, एवरीथिंग सब कुछ डिफरेंट है, तो एक एंजॉयमेंट तो बहुत आता है. ओके. क्लाइमेट का फर्क, एनवायरमेंट का फर्क, एवरीथिंग इज देयर. सो इट्स अ प्रीटी गुड लेसन है ना स्टूडेंट्स. दैट इज आप देखो पिक्स भी आप साथ साथ में देख सकते हो. दैट इज eighth human environment interactions, the tropical and the subtropical region. जहाँ जहाँ ह्यूमन एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन, जहाँ जहाँ ह्यूमन का इंटरेक्शन है वहाँ पे लेक, रिवर, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड. और जहाँ नहीं है वहाँ अभी भी एकदम साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरी नदी है, क्योंकि वेस्ट जो करें इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहाँ आबादी वहीं पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल है, और इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो दैट इज ऑल. ओके. एंड इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दिस. दैट इज एक्सरसाइज. इट्स एक्सरसाइज. ओके. सो प्लीज डू रीड द लेसन. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. इजी है, आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाउकन्स आर द टाइप ऑफ बर्ड्स. मैन्योक इज अ स्टेपल फूड ऑफ Kolkata is located on the river Hooghly. Deodars and firs are a type of, क्या है deodars and firs? Are the type of which trees?
teak, sal and peepal are tropical deciduous forest. And pine, deodar and fir is mangrove forest, coniferous forest होगा. Bengal tiger is found in Assam, na, in Bengal tiger, Amazon delta area. Okay. So students, in my next class I will continue with this exercise of page number 63 of this lesson. Till then you just revise this lesson. बहुत ही interesting lesson है.